Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine and good students. The topic which we will discuss today is amendment process in the term of the Constitution of Pakistan. So basically student, before starting the topic, firstly we have to understand what is amendment, what is amendment process, and what are the reasons behind the amendment process. So what is amendment? Student, basically amendment is the process of alerting or amending a law or document such as a constitution by parliament or constitutional procedure. Rights that were granted by amendment of the constitution. So basically students, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जो कि जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी चेंज को लाते हैं. फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अल्ट्रेशन प्रपोज्ड और इफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. And what is the purpose of an amendment? Basically the amendment purpose, student, basically is to guarantee the fundamental rights that every citizen of the United States must enjoy. It is a protection given in favor of the people against the tyranny or power of the government. Further student, किसी भी मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक प्रैक्टिसाइज किया जाता है उसके अंदर विद द नीड ऑफ टाइम के साथ जो भी चेंजिंग लानी होती है उस चेंजिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट. इफ़ वी डिस्कस द अमेंडमेंट प्रोसेस इन द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, because we are the citizens of Pakistan and firstly we have to understand the constitution of our own country. That's why I am telling you the amendment process through the Pakistani constitution. Basically student, the constitution of Pakistan is said to be rigid and flexible at the same time when it comes to making amendments. So basically students, as you know very well, Pakistani constitution is rigid as well as flexible. So when there is a need of the amendment process, it became rigid and flexible at the same time. Our constitution is rigid in the sense that it cannot be amended in the manner in which ordinary laws are passed or amended. So basically student, amendment क्यों नहीं हो सकती constitution की? ये rigid क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग है ऑर्डिनरी पास, जिस तरह ऑर्डिनरी लॉज, कोई भी किसी भी किस्म का लॉ अगर हम पास करवाना चाहते हैं वक्ती तौर पे रिगार्डेड दी फ्रीडम ऑफ द मीडिया, रिगार्डेड दी फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न, वी कैन से कि ऑर्डिनरी लॉ पास कराने के लिए जिस तरह रिजिड नहीं होता, क्योंकि ऑर्डिनरी पास बहुत इजी मेजॉरिटी की अप्रूवल के साथ पास हो जाते हैं. डेट्स वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ ए majority approval to pass the ordinary laws. So basically in Pakistan a 2/3 majority is required to pass a constitutional amendment bill as compared to a simple majority needed for passing ordinary or institutional bill. So पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए. अगर उसको हम कंपेयर करें सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के लिए, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी अमेंडमेंट के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कोई भी अमेंडमेंट रिकॉर्डिंग द लॉ अगर कोई भी हमें ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह की आर्मी कोड्स बनाई गई थी पाकिस्तान के अंदर, या 18 अमेंडमेंट का प्रोसेस था, या 28 अमेंडमेंट या 19 अमेंडमेंट, जो कि अमेंडमेंट्स हुई थी उसके अंदर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी अमेंडमेंट की जाती है तो उसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की अप्रूवल ज़रूरी है. जबकि
एक सिंपल ऑर्डिनरी लॉ को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का की अप्रूवल लाजमी है. हाउएवर इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल एज़ कम्पेयर टू द US कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ अ मोर रिजिड अमेंडमेंट प्रोसीजर. सो बेसिकली स्टूडेंट, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम USA के या किसी और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट. Further, if we discuss about the next step of the constitution is amendment process. According the article of 238 and 239 provide for the amendment procedure in the 1973 constitution of Pakistan. So basically student, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल प्रोसेस है, आर्टिकल जो प्रोवाइड किए गए हैं 238 और 239, उसके अकॉर्डिंगली हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस डिफ़ाइन किया गया है. सो व्हाट इज़ आर्टिकल 238? The Article 238 is the Constitution may be amended by an act of Parliament, which means that it would follow a similar procedure as that of passing a bill. It means that एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसा बिल अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई भी ऐसा उनका एक्ट, पार्लियामेंट का किया हुआ फैसला, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बतौर एक अमेंडमेंट पास हो जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 238. फर्दर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 239, एन अमेंडिंग बिल कैन बी इनिशिएटेड इन अदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. यानी जो अमेंडिंग बिल होता है वो क्या होता है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेज होते हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट, उन दोनों के अंदर क्या होता है, पेश किया जाता है अमेंडिंग बिल. कोई भी अमेंडिंग बिल उनके सेनेटर्स के आगे और जो MNA MPs हैं उनके आगे पेश कर दिया जाता है, जिनके पास करने के बाद भी कोई भी बिल किसका हिस्सा बन जाता है, अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे ओरिजिनेट in the National Assembly and after being passed by 2/3 majority of the House, it shall be transmitted to the other House, the Senate. I am giving you an example of the passing the bill के नेशनल असम्बली के 2/3 मेंबर्स के पास करने के बाद वो बिल सेनेटर्स के पास भी मूव कर दिया जाता है. यानी सिर्फ ये नहीं कि नेशनल असम्बली के मेंबर ने पास कर दिया तो वो क्या होगा, अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाएगा. फर्दर वो बिल कहाँ मूव हो जाएगा, सेनेट के पास. If the other house also passes the amending bill with 2/3 majority of the total membership without any further amendments, the bill shall be presented to the president for assent. यानी फर्स्टली पार्लियामेंट के आगे, पार्लियामेंट के नेशनल असम्बली की 2/3 मेजॉरिटी के आगे पेश किया जाता है बिल, यानी उनके वो पास करते हैं. उसके बाद वो जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो बिल जो है वो किसके आगे पेश किया जाता है, सेनेटर्स के बाद. और जब टोटल मेजॉरिटी जो है, यानी सेनेटर्स जो है, सेनेट्स की भी जो 2/3 मेजॉरिटी है वो टोटल मेंबरशिप की, वो भी जब बिल को पास कर देते हैं, फिर विदाउट एनी प्रोसीडिंग, विदाउट एनी अमेंडमेंट, वो बिल कहाँ पेश कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट के पास. If the bill originates in one house and is passed accordingly and then sent to the other house for approval, and if it is also passed in the other house by 2/3 majority but with further amendments, means अगर कोई भी बिल नेशनल असम्बली के MNA MPs की 2/3 मेजॉरिटी पास कर देती है और इसके साथ साथ सेनेटर्स की भी 2/3 मेजॉरिटी उसको पास कर देती है, लेकिन उसके अंदर फर्दर कोई ना कोई चेंजिंग और अमेंडमेंट ज़रूरी होती हैं, तो वो सेनेटर्स के पास से कहाँ पे वापस भेज दिया जाता है, अपनी ओरिजिनेटेड जगह से, यानी जहाँ से वो बिल पार्लियामेंट के जिस एक्ट से वो बिल जनरेट होता है, यानी जिस जगह उसकी ज़रूरत पेश आती है, उसकी जो जनरेटेड ओरिजिनेटेड प्लेस होती है, जिस जगह पे वो जनरेट होता है, उस जगह पे उस अमेंडमेंट के उस प्रोसीजर के बिल को बैक कर दिया जाता है फॉर रिकन्सिडरेशन.
After reconsideration of the proposed changes by the originating House, if the bill is passed including those amendments and changes by 2/3 majority, then it shall be present to the President for assent. जब प्रपोज्ड बिल के ऊपर जो जितनी भी रिकन्सिडरेशन होती हैं एक ओरिजिनेटिंग हाउस में, यानी जो जब वो बिल वापस आता है अपने ओरिजिनेटिंग हाउस के पास, नेशनल असम्बली के पास, तो उस बिल के अंदर वो तमाम जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं अमेंडमेंट्स प्रोसेस के थ्रू, मेजॉरिटी के थ्रू, वो क्या होती हैं, वो ख़त्म की जाती हैं और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी की अप्रूवल के बाद वो बिल प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के सामने पेश कर दिया जाता है. If there is an amending bill relating to the altering of provisional boundaries, means अगर कोई भी अमेंडिंग बिल हमारी जो इलाकाई हमारी जो सूबाई बाउंड्री से रिलेटेड है, देन इट शैल नॉट बी presented to the president unless the same bill has been passed in the concerned provisional assembly by the votes of not less than 2/3 of its total membership. कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडिंग बिल जो कि हमारी सूबाई इलाकों से रेलिवेंट है, सूबाई ख़ित्ते से रेलिवेंट है, वो कोई भी बिल हमारे जो सदर होते हैं उसके सामने पेश नहीं किया जाता, यहाँ तक कि जो बिल है वो प्रोविजनल असम्बली के 2/3 मेंबर्स की अक्सरियत से कम लोगों ने उसको पास किया हो. आफ्टर दिस प्रोसेसिंग आर्टिकल 239 जो वो मेंशन करता है कि कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होगी, शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ ऑन एनी ग्राउंड. आर्टिकल 239 ये भी राइट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी अमेंडमेंट के अंदर लॉ प्रोसीडिंग वैलिड है और उसको अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है. इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देयर इज़ नो लिमिटेशन on the power of the parliament to amend any provision of the constitution. तो इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत ये बात सामने आती है कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करने से रिगार्डेड, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है. सो जिसके तहत कोई भी एक्ट कोर्ट ऑफ कोई भी विदाउट एनी लिमिटेशंस कोई भी जो लॉ के तहत कि कोई भी ऐसा बिल अमेंडिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई भी ऐसा बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फैसले के तहत अमेंडमेंट के प्रोसेस में लाया जाता है, वो लॉ के तहत किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. When we discuss the amendments of Constitution of Pakistan, basically as I told you, amendment constitution can be amended only by 2/3 majority of members of National Assembly. The constitution has been amended 21 times till now. यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब से बना है वो अब तक 21 दफ़ा, यानी एक विद इन ए स्टडी not only 21 times, 23 टाइम्स, 2 और अमेंडमेंट इसमें हो गई हैं, अब तक अमेंड हो चुका है. Sorry, not only 23, 25 amendments have been made to the Constitution. Among the most important of these are the 18th, 8th and 17th Amendment, which changed the government from a parliamentary system to a semi-presidential system, then again to parliament system. So I am giving you a short view of these amendments. Some of these amendments, especially the 8th and the 17th amendments, several articles, there has been some lately of a return to the original constitution. First 7 amendments जो थी पाकिस्तान की पहली 7 amendments वो पास हुई थी किसके तहत, पार्लियामेंट इन भुट्टो पीरियड में. 8, 9, 10 basically amendment passed under Zia period. Other amendments passed with the passage of time. Third Amendment 1975, 4th Amendment 1975,
5th 1976, 6th अमेंडमेंट 1976, 7th भी 1977 में, और इस तरह 17 अमेंडमेंट ने 8th अमेंडमेंट 1985, 10th अमेंडमेंट 1987, 12th अमेंडमेंट 1991, 13th अमेंडमेंट 1997, 15th अमेंडमेंट 1998, 16th अमेंडमेंट 1999, 17th अमेंडमेंट 2002. These all amendments were happened during the time period of General Ziaul Haq. If I give you a short review of these amendments from 1st to 17, I will describe you a small nature of the constitution. पहली अमेंडमेंट जो 1974 में हुई, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास 2 को ख़त्म कर दिया गया था, उस क्लास को दोबारा इस्टेब्लिश करते हुए ईस्ट पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन थी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो दी गई जब से सिंस बांग्लादेश ने अपने आप को पाकिस्तान से रिकगनाइज़ करवाया। उसके साथ साथ सेकंड अमेंडमेंट की रीज़न क्या थी? अमेंडमेंट जो थी वो डेल्ट हो गई थी विद द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम फॉर लीगल पर्पसेस। थर्ड अमेंडमेंट की रीज़न क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रूशियल राइट्स ऑफ द डिटेन्स इन केसेस ऑफ द प्रिवेंटेटिव कस्टडी एंड इंक्रीज द पावर्स ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटीज़। वो लोग जिनके पास लेस अथॉरिटीज़ थी, उनकी पावर्स को देखते हुए उनकी राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। फोर्थ अमेंडमेंट 1975 में जो हुई, उसका रीज़न क्या था? हाई कोर्ट्स की पावर को लिमिटेड कर देना, इंटरफेयरिंग एंड विद केसेस रिलेटेड टू प्रिवेंटेटिव डिटेनमेंट। The fifth amendment 1976. The reason behind this amendment was it was the major amendment related to the status of the governors, और जो उनकी पावर थी, चीफ जस्टिस की जो पावर्स थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उसको इंक्रीज़ कर दिया गया चीफ जस्टिस की पावर को। द रीज़न ऑफ द सिक्स्थ अमेंडमेंट वाज इट मेंडेड टू एक्सटेंड द स्टे ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इट्स जॉब। द रीज़न ऑफ द सेवंथ अमेंडमेंट 1977. The reason behind this amendment was amendment for the institution of a referendum in order to seek public confidence in the Prime Minister. The 8th Amendment 1985. The reason behind this amendment was increase the overall power of the President. 10th Amendment 1987. Under the amendment of Article 54 and 61, working days in a year of National Assembly and Senate were described. 12th Amendment 1991. The reason behind this amendment was student amendment to constitute special courts for heinous crime as well as increase the pay of the court judges. In the 12th Amendment, they increased the pays of salaries of the court judges. 13th Amendment. The reason behind this amendment to withdraw powers of the president and governors to dissolve. तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पावर्स थी नेशनल और पार्लियामेंट्री असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने की, वो 13 अमेंडमेंट में उनसे वापस ले ली गई। अबू नमाज पढ़ोगे? In 14th Amendment 1997, the reason behind this amendment was insertion of Article 63A to provide its qualification of a member of parliamentary party on the ground of defection. The reason behind 15th Amendment 1998, in view of the fact that the objective resolution is now substantive part of the Constitution. 15th Amendment के Article 2B के accordingly जो objective resolution थी, जो कि Constitution का part थी, it is necessary that Quran and Sunnah are declared to be the supreme law of Pakistan and the government is empowered to take necessary steps to enforce Sharia. यानी 15वीं तरमीम के बाद हमारे कुरान पाक और सुन्ना को क्या कर दिया गया? एक नेसेसरी पार्ट करार दे दिया गया सुप्रीम लॉ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली, और हमारी जो शरीयत को नाफिज कर दिया गया। 16 अमेंडमेंट 1999 के तहत कोटा सिस्टम वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 40 years until 2013 in order to safeguard minorities and civil rights. 17th Amendment. Nature of amendment made to the Constitution for the preparation of rule by General Musharraf. These amendments were augmented by the inclusion of the legal framework order LFO into the Constitution. In this way, I am giving you a short view, short nature of the First Amendment to the 17th Amendment of the 1973 Constitution. जो Islamic provision of 1973 Constitution की है वो ये है, Islam will be the state religion
constitution. President and Prime Minister must be Muslim by faith and belief, and they should also be professing faith in the finality of prophethood. Clear and यानी उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे उनकी रसालत पे यकीन होना चाहिए. इस्लाम इसके साथ साथ clear and conscious definition of Muslim was laid down on the constitution. All laws of the state shall be brought in conformity with the injunctions of Islam. Islamic provision of 1973 Constitution. The government will take all possible steps to impart education of Islamiyat and the Holy Quran. The President and Prime Minister will take oath, openly express their faith in the Holy Quran and the finality of prophethood. Islamic Advisory. Student, the Islamic Advisory Council will be set up to bring the existing laws of the country in conformity with the Islamic provision. Steps will be taken to introduce interest-free banking system in the country in the light of the Islam. Steps taken towards Islamization. There are few steps taken into the Islamization according to the Constitution. These were the establishment of the Federal Shariat Court, enhancement of Hudud laws, Zakat and Ushur ordinance, interest-free banking, establishment of Shariat faculty, establishment of Law Commission, Wafaki Muhtasib Salat Committee, Ehtaram Ramazan.